अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौर के इलाका रायविंड में 12.5 साल बच्ची 2.5 साल कबल मुबैना तौर पर अगवा हो गई। उसके अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया और आज 2.5 साल बाद वो 15 साल की उम्र में बाजियाब हुई। उसने इस दौरान क्या कुछ सहा, उससे क्या कुछ करवाया जाता रहा, वो कहाँ अगवा की गई थी, क्या दास्तान है, ये तमाम तफसीलात बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाज़रीन, लाहौर के इलाका रायविंड में आज से 2.5 साल कबल 12.5 साल बच्ची मुबैना तौर पर अगवा हो गई। उसके अगवा का मुकदमा थाना रायविंड में दर्ज किया गया। उसका गमजदा वालिद उस बच्ची को तलाश करने के लिए क्या कुछ करता रहा। बिलाखिर अब वो बच्ची बाजियाब हो गई। वो बाजियाब कहाँ से हुई, उससे किन लोगों ने अगवा किया था, असल में दास्तान है क्या, और इस वालिद पर क्या गुजरी जो अपनी बच्ची को इतने रोज तक बल्कि 1.5-2.5 साल तक तलाश करता रहा। पुलिस ने उसकी क्या मदद की, कहाँ कहाँ वो गया, किन किन हालात का उसे सामना करना पड़ा, उसी वालिद की जुबानी आपको सुनाते हैं। मुबारक हो वे जी, खैर अल्लाह मुबारक पाक ने सर। करम करता, बच्ची आ गई। की होया सी ते किन्ने साल पहले दा है वकूआ है, किथे गई सी सर तकरीबन कोई 2.5 साल पहले का वाकया है। अच्छा, मैं ड्यूटी ते गया सा, मेरी बच्ची कार सी। ठीक है। की करदे हो तुसी? मैं ड्राइवरी करना। शहजाद नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जी, शहजाद मेरा नाम है। अच्छा, मेरे बच्चे ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਲੜੇ ਨੇ। अच्छा। ਇਹ किन्ने बच्चे ने ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ठीक है। ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿੰਨਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਉਹ ਬੇਟਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਛੋਟੇ, अच्छा, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ 14.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ अच्छा, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ। अच्छा, ਤੇ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲੀ ਘਰੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਪਸ ਚ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਿਆ, ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ- ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ, ਲਿਆਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਘਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੈ। अच्छा, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲੀ ਚੰਗੀ ਰਹੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ, अच्छा, उधर चली जा। ਉਧਰ ਚਲੀ ਜਾ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਬੱਚੀ ਦੀ? 12.5 ਸਾਲ। 12.5 ਸਾਲ। अच्छा, ठीक है। ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਏ, ਭਾਈ ਸੌ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਏ। ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਈ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਅੱਗੇ ਟ੍ਰੇਨ ਖਲੋਤੀ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਖਲੋਤੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, अच्छा, लापता हो गई। नहीं पता लगा, घरों चली गायब हो गई। ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ठीक है, फिर? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ, ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਬੱਚੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਲਕਸ ਕੋਈ 9-10 ਵਜੇ ਰਾਤ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਰਾਇਮੰਡ ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ठीक है। ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਦਰਖਾਸਤ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ FIR ਕੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਦਾ FIR ਕੱਢ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅਗਵਾ ਹੋਈ ਹੈ, FIR ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰ FIR ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੱਟੋ ਪਰਚਾ। ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਾਮਲੂਮ, नामालूम, क्योंकि पता ही नहीं है ना कितने है की। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। हाँ, ਨਾਮਲੂਮ ਪਰਚਾ ਕਰੋ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਦੇਤਾ। सही है। ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, 1-2 ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੂੰ ਆਪ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਕੁੱਟ ਸਕਣਾ। हाँ, छोटी जी बच्ची 12.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਦੀ। ਖੈਰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਓ, हाँ, ठीक है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਲੱਭੋ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕੱਢੋ, ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ठीक है, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭਾਂਗਾ, ठीक ਕਿਉਂਕਿ है। ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੰਚਾਰਜ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ? ਉਦੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਅਕਰਮ। अच्छा, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਫਾਈਲ, मतलब ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਸੀ ਅਕਰਮ ਨੇ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ?
ਅਕਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ? ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮਾਰਦੇ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਿਰਫ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਥਾਣੇ ਗਏ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਚੱਕਰ ਉਹ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜੀ। ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ। ਹੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਫੜਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਵਾ ਦਾਂ, ਮੈਂ ਬਦਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਖੈਰ 2-3 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ। ਕੁਝ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ 7 ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ time ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ, ਤੂੰ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਲ ਰੱਖਣੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਗਾ, ਮੈਂ ਸਰ ਕਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਸਾਈਨ ਕੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਬੱਚੀ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਲਿਆਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ? ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਸਰ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਆਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਵੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਰ ਬੱਚੀ ਲੱਭੇ। ਜਿੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਟੁਰ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਮਗਰ ਵੀ ਪਾਈ ਨਾ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ? ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਸਿਸਟਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਕਾਫੀ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਲੈਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ। ਜੀ। ਬੱਚੇ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ? ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਧਰ? ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਮਰਹਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 7ਵੀਂ ਮਰਹਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨੈਸਲੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਫਰਕ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥਾਣੇ ਰਹਿਮੰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਆਲਾ ਪੁਲਿਸ? ਸਰ, ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਂਦੇ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡੀਆਈਜੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ? ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਵਾ ਜੀ। ਥਾਣੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰੋਂ ਮੈਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਰਹਿਮੰਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਾਏਵਿੰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 7ਵੀਂ ਮੁਹੱਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ ਜੀ। ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਖਿਆਲਾਤ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਲੱਭੇਗੀ ਬੱਚੀ? ਲੱਭੇਗੀ ਬੱਚੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯਕੀਨ ਬੱਚੀ ਲੱਭੇਗੀ ਮੇਰੀ? ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੈਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬੇਟਾ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਹਾਂਜੀ। ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਪਣੀ? ਇਰਾਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੈਂਗ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਨਬੀਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੜਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛਾਪਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 2.5 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਤਸਵੀਰ ਬੱਚੀ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲ ਕੱਢੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੇਖੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਾ ਖੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦੇ। ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਤੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੁੱਟੀ? ਉਮੀਦ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 2.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਾਫੀ। ਵੈਸੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰ ਲੱਭੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਆਖਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ? ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਲਿੱਤੀ? ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਰ 7 ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਥਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਉਹ ਰਾਏਵਿੰਡ ਥਾਣਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਆਇਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ FIR ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਰਾਬਤਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮੁਹਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ ਕੌਣ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ASP ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਰੈਮੰਡ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਬੱਚੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਤਲਾਹ ਦੇਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਥਾਣੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਬਾਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਧਰ ਆਏ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਤੇ, ਕੁਝ 4-5 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
मैं कहा सर मैंने इतला मिल चुकी है, लिहाजा मैं शाम 7:30 बजे आवाँगा, ठीक है, फिर पहुँचाँगा। सही है। 7:30 बजे पहुँचे हैं। थाना इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन वाले ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਦਾਦ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਲੱਭ ਗਈ ਹੈ। सही है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। सही है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। सही है। ਸਾਨੂੰ 7ਵੀਂ ਮੁਹੱਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ 8ਵੀਂ ਮੁਹੱਰਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, अगले दिन क्या? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ठीक है। थाने चू ਜਦੋਂ ਗਏ ਹੋ ਉਸੇ ਦਿਨ कहता है उन्होंने कि अगले दिन फिर गए हो? ਮੈਂ ਸਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। थाने गए हो? ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। अच्छा, ड्यूटी ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪੀਰ ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈਗੀ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਜ਼ਰ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਤੋਂ ਹੈ। 8ਵੀਂ ਮੁਹੱਰਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਥਾਣੇ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਉੱਥੇ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਮਿਲਵਾਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ- ਗਏ ਕਿਵੇਂ, ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਇਤਲਾਹ ਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਕੌਣ ਸਰ- ਕੌਣ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਬਹਿਨੋਈ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਸ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਗਏ हैं। इतों पहले ट्रेन 'ਚ बैठे हैं, हैदराबाद जाके उतर गए हैं। उत्थे गए हैं ईडी होम सेंटर वाले को। सही है। उन्होंने जाके उत्थे पूछा, दसिया जी कि इत्थे ईडी होम सेंटर जिथे बच्चे रखते, उन्होंने कहा सर इत्थे दारा कोई नहीं गा, लिहाजा तुसी दारुलमान 'ਚ पता कर लो। हैदराबाद दारुलमान चले गए सही है। कि शायद ये ना होम सेंटर होए। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਦਰਾਬਾਦ- ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 11:30-12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀਗੀ। ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਤੀਆਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਨਿਭਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਮਰਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਸਵੇਰ ਤਕਰੀਬਨ 9ਵੀਂ ਮੁਹਰਮ 9ਵੀਂ ਮੁਹੱਰਮ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨੋਈ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰੀ ਉਸ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਏ ਨੇ ਕਰਾਚੀ, ਸਰਾਬਕੋਟ। ਅੱਛਾ। ਸਰਾਬਕੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੈਂਡ ਈਡੀ ਹੋਮ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਉੱਥੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਛੋਟੀ ਹਾਈਐਸ ਬਕਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਕਰਾਚੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਰਾਚੀ ਸਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਸੈਂਟਰ ਅੱਗੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਗਏ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਮੈਡਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰੀ ਕਿਹਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੱਚੀ? ਅੰਦਰੋਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਡਮ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੇਖ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਦ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸੀ? 2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਈਦ ਦਾ ਚੰਨ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਓਏ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ?
ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, 15 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਹੀ मतलब ईदी सेंटर तो निकल आए हो बाहर? ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਲਾਏ ਨੇ। कोई साइन सुइन कराए, कोई सिर्फ डॉक्यूमेंट? एक साइन मेरा करवाया, अच्छा। कोई अंगूठा नहीं लगा हुआ है, कुछ नहीं। अपने आईडी कार्ड की फोटो कापी ली मेरी उन्होंने। अच्छा। आईडी कार्ड मेरा लिया, उन्होंने सारा कुछ लिखा, मेरा एक साइन लिया, उन्होंने कही बच्ची लैके जाओ। कुछ दसिया, कोई गुफ्तगू की मैडम ने तुहाडे नाल? नहीं सर, उन्होंने कोई मेरे गुफ्तगू नहीं की। अच्छा, कुछ नहीं दसिया? कुछ नहीं दसिया उन्होंने। अच्छा, बच्ची लैके निकल आए हो तुसीं? बच्ची लैके निकले। फिर कित्थे गए बच्ची लैके? उतो सारे ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੁੱਟਰ ਪਏ ਆ। ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਈ 12-13 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਕਲੇ ਆ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅਸੀਂ 11:30 12 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 12 ਵਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੀ ਉੱਥੋਂ। सही है। ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ। इस दौरान बच्ची ना गुफ्तगू कर रहे हो तुसीं? हाँ जी। गुफ्तगू होना शुरू हो गई, की दस रही सी बच्ची उस दौरान तक? ਬੱਚੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬੇਟਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਬਸ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਈ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਹਾਂ। ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏਵਿੰਡ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਮੰਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ। ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਨੇ ਅਗਰ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੁੱਫੀ ਵਾਲੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ 15 ਦੀ ਕਾਲ ਤੇ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਈਟੀ ਹੋਮ ਸੈਂਟਰ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ? ਬੱਚੀ 12.5 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਸੀ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਡਮ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਘਰ ਇਤਲਾਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਬਾਦਲਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਡਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ अपनी बच्ची के कोल हाँ। बहुत मुबारक हुए। नाज़रीन, ये देखें, एक बाप की खुशी की इंतहा नहीं है। उसे 2.5 साल बाद अपनी बच्ची मिली। तकरीबन 2.5 साल वो दर बदर ठोकरें खाता रहा अपनी बच्ची की बाजियाबी के लिए। पुलिस स्टेशन जाता था, आता था। पहले तो पुलिस इससे ही कहती रही कि तूने ही मार के फेंक दी है बच्ची। फिर बाद में कहा कि इस केस को ही ख़त्म कर दो और झूठ बोल दो, झूठे साइन कर दो कि तुम्हें तुम्हारी बच्ची मिल गई है। लेकिन वो कहता था नहीं, मेरी बच्ची नहीं मिली। और उसे उम्मीद थी कि उसे बच्ची मिलेगी। हर जगह पर उसने किस्मत आजमाई, ठोकरें खाता रहा, साथ साथ तवीज़ धागे करवाने वाले रूहानी शख्सियात, हर जगह पे जाता था और यही उम्मीद रखता था कि कहीं ना कहीं से पता लगेगा कि उसकी बच्ची मिलेगी। मिलाकर 2.5 साल बाद उसकी बच्ची मिल गई। वो बच्ची किस हालत में उसने 2.5 साल गुजारे? 12.5 साल की उम्र में वो अगवा हुई थी। मुबैना तौर पर अगवा का पर्चा दर्ज था उसका। और फिर तकरीबन 2.5 साल बाद ही वो बाजियाब हुई है। क्या कुछ उसने 2.5 साल में सीखा? अब वो 15 बरस की हो चुकी है, पहले 12.5 साल उसकी उम्र थी। 2.5 साल में क्या देखा, क्या बातें हुई, क्या कुछ उस पर बीता, ये उसकी ज़ुबानी भी हम आपको सुनाते हैं। नाज़रीन, लाहौर के इलाका रायविंड में आज से 2.5 साल कबल हमारे साथ मौजूद ये बच्ची मुबैना तौर पर अगवा हो गई, जिसके अगवा का मुकदमा भी थाना रायविंड सिटी में दर्ज किया गया। ये बच्ची ने 2.5 साल कहाँ गुजारे, क्या कुछ इससे सहना पड़ा और कैसे बाजियाब हुई, ये इसी की ज़ुबानी हम आपको सुनाते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? माइक ऊपर रखें। महक। महक, क्या करती थी आप पहले? कुछ भी नहीं करती थी, घर में रहती थी, काम करती थी। पढ़ती थी आप कि नहीं? जी नहीं। पढ़ती नहीं थी। ठीक है।
और वालिद आपके? शहजाद। शहजाद, ठीक है। तो वालिद के पास ही रहती थी आप? जी। सही है। और वालदा? वालदा का वो नहीं है। वालदा नहीं है? नहीं। अलहदगी हो गई अभी? जी। तो बचपन में ही नहीं देखी वालदा आपने? जी नहीं। राब्ते में थी वालदा आपके साथ? नहीं, एक बार होती वालदा बस। ऊंची बोलें। एक बार थी बस, मुलाकात हुई थी। एक बार हुई थी मुलाकात? जी। कितनी बरस की थी तब आप? 10 बरस की थी। 10 साल की थी, ठीक है। तो क्या हुआ था 2.5 साल पहले, क्या मामला हुआ था? भाइयों के साथ झगड़ा हुआ था। कौन से भाई के साथ? बड़े भाई के साथ। अच्छा, क्या नाम है उसका? सजावन। क्या कह रहा था? वो भाइयों के साथ झगड़ा हुआ था ना, वो काम नहीं करती थी, लोग के कपड़े नहीं धोती थी, इसलिए अच्छा। झगड़ा हो गया था। इसलिए अच्छा। लोग ने बोला था अपने पप्पो के पास ही सही थी, इसलिए मैं झगड़ के चली गई थी। फुफ्फो के पास रहती थी पहले? जी, कितनी पहले। देर रही फुफ्फो के पास? एक तो 2-3 महीने रही थी मैं। अच्छा, फिर अपने घर जब आई जी। तो भाई के साथ, बड़े भाई के साथ झगड़ा हो? जी। अच्छा, भाई ने कहा कि तुम काम वगैरह कोई नहीं करती जी। मेरा? जी। ठीक है, फिर? वो गुस्से में घर से निकल गई, मैं पप्पो के घर जा रही थी। गुस्सा आ गया आपको? जी। कि मैं घर से फुफ्फो के घर जा रही हूँ? जी। फिर? वो मैं अपने पप्पो के घर जा, आगे रेलगाड़ी थी, रेलवे स्टेशन था आगे। नहीं, घर से निकली? जी, वो रास्ते में जा रही थी तो आगे। रास्तों का पता था घर से बाहर? जी। अच्छा, कहाँ पे गई वो- घर से निकल के? सीधा सीधा रेलवे स्टेशन में गई थी। अच्छा, स्टेशन से आता है फुफ्फो का घर? जी। वहाँ। जी। कहाँ पे रहती है फुफ्फो? पानी वाली टंकी के पास। अच्छा, वो मतलब रेलगाड़ी में बैठ के जाना पड़ता है फुफ्फो की तरफ? नहीं, अच्छा। वो बैठ गई थी, गलती से दूसरी जगह जाना था ना, गलती से बैठ, वो गाड़ी चल पड़ी थी, इसलिए आगे कराची चली गई। गाड़ी चल पड़ी? जी। फिर? और कराची अपने वो पहले हैदराबाद उतरे, हैदराबाद वाले पुलिस वालों ने मुझे नहीं, तो कराची रास्ते में किसी ने टिकट नहीं चेक की आपकी? जी नहीं। हम्म? जी नहीं। नहीं चेक की? किसी ने पूछा भी नहीं पीटी ने कहाँ पे हो आप, किसके साथ आई हो? नहीं। अच्छा, हैदराबाद उतरी तो फिर जी। कितनी देर ट्रेन चल रही थी, आपको पता नहीं लगा कहाँ पे जा रही है ट्रेन? जी नहीं। अच्छा। फिर हैदराबाद उतरी, हैदराबाद वाले पुलिस वालों ने पकड़ा, वही दी सेंटर में डाल दिया। पुलिस ने पकड़ लिया? जी। पुलिस क्या कहती? पुलिस ने पूछा था कहाँ की हम। हाँ, आपने क्या बताया उन्हें? मैंने बोला लाहौर की हूँ। अच्छा। लोग ने ईडी में डाल दिया, सेंटर में डाल देता। फिर उन्होंने बताया नहीं लाहौर की हो, यहाँ पे क्या करने आई हो? नहीं। हैं? ये भी नहीं पूछा पूछा? आपने क्या कहा? मैंने बोला था मेरे भाइयों के साथ झगड़ा होता है, इसलिए मैं घर से भाग गई? जी। अच्छा। तो उन लोगों ने ईदी वालों को कॉल की, ईदी वालों आपका को। प्लान यही था कि मतलब फुफ्फो की तरफ नहीं जाना, कहीं और चले जाना है? नहीं, फूफो की बोला था। फूफो के घर ही जाना, तो वो गलती से आ गए। गलती से आ गई? जी। अच्छा, फिर पुलिस ने पूछा? जी। और अब्बू का पूछा आपके? जी। क्या बताया आपने? मैंने अपने अब्बू का नाम बताया था। मैंने बोला अब्बू काम में जाते हैं, इसलिए झगड़ा हो गया, अब्बू का पता नहीं था, इसलिए मैं गुस्से से आ गई, अच्छा, यहाँ पर गई। लोग ने ईदी वालों को कॉल की, ईदी में डाल दिया। ठीक है। बहुत सेंटर में रह रही थी। हिंदी सेंटर चले गए? जी। वहाँ पे किससे मिले? वहाँ 4 से मिली थी, उन लोगों ने अंदर कर दिया था। अच्छा, क्या कहती? खतून थी, औरत थी? जी। क्या कहती थी? उसने कुछ नहीं बोला, उसने डायरेक्ट अंदर कर दिया था। कम नाम नहीं पूछा आपका, कहाँ के रहने वाली हो? जो वालिद का नाम पूछा था, बता दिया था नाम। अच्छा, वालिद तो का आपने उन्हें ये नहीं कहा बेटा कि मैंने घर जाना है, मेरे अब्बू के पास बोला मुझे था। पहुंचा दो? मैंने बोला था, उन लोगों ने सुना नहीं था। क्या सुनाई नहीं देता था उनको? सुनाई देता तो वो अनसुनी कर लेती थी, वो दूसरों कामों में बिजी रहती थी, नहीं बताती थी किसी को भी। अच्छा। वो मैंने 2 दफ़ा बोला तो उन लोगों ने नहीं सुना। वो लोग की ड्यूटी चेंज हो गई, फिर दूसरी मिस आई थी। नहीं, अब भी नहीं आनी मिस ने। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन, वहाँ पे क्या रूटीन थी? आपको अंदर ले गए, जी। वहाँ पे उन्होंने कहा चले जाओ, किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, अंदर कहाँ पे रखा? वहाँ कमरों में रखती थी, कमरों में रहती थी। उठते थे, सोते थे वहाँ पे? जी। कितने बजे उठते थे? 6 बजे सुबह उठते थे। सोते कितने बजे थे? 10 बजे। 10 बजे रात को सो जाते थे, जी। 6 बजे उठते थे। अब जी। 6 बजे उठने के बाद क्या करते थे? काम वगैरह करते थे, स्कूल जाते थे वहाँ। स्कूल पढ़ाई शुरू कर दी? जी। कौन सी क्लास में पढ़ना शुरू? 1 क्लास में थी। 1 क्लास से? जी। क्योंकि पढ़ी नहीं थी आप यहाँ पे? जी नहीं। अच्छा, पढ़ाते थे? जी। फिर पढ़ती थी वो। 1 बजे छुट्टी हो जाती थी?
जी कितने बजे होती थी? 1 बजे होती थी। अच्छा 1 बजे हो गई। फिर तो जब वार्ड में जाती थी, काम करती थी, बच्चों को देखती थी और वगैरह। मजीद बच्चे होते थे वहाँ पे जी। आपसे छोटे? जी उन्हें संभालती थी? जी, उन लोग को संभालती थी, फिर? काम कर करती थी। ऐसे दिन गुजर गए। तो वहाँ मिस आती थी, वो पूछती थी, सबको पूछती थी, वो बताती नहीं थी आगे। फिर उसकी ड्यूटी चली गई, दूसरी मिस क्या आई पूछती थी। थी? घर का पूछती थी, सबका घर कैसे, कहाँ से, यहाँ से आए, कैसे आए, बताती थी मैं। वो लोग भी बताते थे। लोग को भेजती नहीं थी, डॉक्टर को बताती थी, आगे नहीं भेजती थी घर में। अच्छा तो उन लोग की तो पता नहीं कैसी ड्यूटी चली गई, दूसरी मिस आ गई, अल्लाह ने भेज दिया। वो पूछती थी घर का। वो मिस तो अभी आई होंगी ना? नहीं, 1 साल बाद आ गई थी, दूसरी चेंज हो गई थी। अच्छा साल बाद आ गई थी, जी। मतलब 1.5 साल पहले दूसरी मिस आ गई। जी। तो दूसरी मिस ने क्या किया 1.5 साल बाद? उसने पूछा था घर कहाँ हमारा, पूरा हाँ। घर का ढूंढा था, पूछ रही थी आपका घर कहाँ है। मैंने पूरा एड्रेस बताया। वो लोग ने एड्रेस आपको सारा पता है? जी। नंबर भी पता था बाबा का? जी, नंबर नहीं पता, अच्छा एड्रेस पूछा था। एड्रेस से लोग ने पुलिस वालों को बोला, पुलिस वालों ने ढूंढा घर, अपने वालदी और लोग ने वालदा से मिला दिया। नहीं, वो तो आपने कहा कि मिस साल बाद आ गई थी। जी। आप तो 2.5 साल बाद आई हो। एक होता है 1 साल, फिर 1.5 साल, 2.5 साल। जी, वो अगर 1.5 साल पहले आपने अपनी मिस को बताया तो 1.5 साल बाद क्यों पहुंची हो यहाँ पे? तो वो पूछती भी थी ना पहले। वो लोग गाड़ी लगती थी, वहाँ की लोड की गाड़ी लगती थी, लोग नहीं भेजते थे। वो बोलते बड़े हैं बच्चे, आप नहीं अभी जाओगे, इसलिए 1.5 साल गुजर गए। तो जब दूसरी बार बोला तो वो कह रही बच्चों को नहीं भेज रहे, वालदा आप लोग के घर वाले आएंगे फिर भेजेंगे आपको घर। तो फिर लोग ने नहीं भेजा। मैंने कहा घर वाले कैसे आएंगे, लोग को तो पता है भी नहीं मेरे घर, मैं यहाँ हूँ कराची में। तो लोगों ने बोला अपना एड्रेस बता दो। मैंने एड्रेस बताया, लोगों ने फिर आगे बताया था पुलिस वालों को। क्या खौफ नहीं आता था वहाँ पे रह के? डर नहीं लगता था? डर लगता और था। क्या कुछ काम करवाते थे वो? क्या क्या करवाते थे आपसे? बच्चों का काम करते थे बस, कुछ और नहीं करते थे। स्कूल जाते थे, कायदा पढ़ते थे। मतलब सफाई वगैरह करवाते थे? जी, अच्छा। जो वो खाना तो- खिलाते थे? जी, बच्चों को खाना पढ़ाते खिलाते भी थे? जी। कौन सी क्लास में फिर 2-2.5 साल में गई? तो पहले छोटी क्लास में थी, वो पेपर दिए, वो आगे 1 क्लास में गई। फिर इसके बाद दोबारा पेपर दिए, 2 क्लास में जाने वाली थी। तो उन लोग ने दिल लग गया था वहाँ पे? जी नहीं, इतना दिल नहीं लगा था। सहेलियाँ नहीं बनी वहाँ पे? बनी थी, कितने बच्चे थे वहाँ पे? बहुत ज़्यादा थे। कितने बच्चियाँ ही थी सारी? जी, बच्चे थी। अच्छा, छोटी- आपकी छोटी- एज की भी जी, थी? जी। अच्छा, बर्थडे आती थी आपकी? नहीं, मैंने बर्थडे का नहीं बताया था। आपको वैसे याद है आपकी बर्थडे? नहीं, अच्छा, नहीं पता था। जी नहीं। ठीक है। तो वो और क्या कुछ कहीं पे बाहर लेके जाते थे सैरो तफरी के लिए? नहीं, ऐसे नहीं लेके जाते। जब ईद आती थी तब लेके जाते थे। ईद ऐसे- पे? जी। ईद पे कहाँ पे जाते थे? तो सेंटर के अंदर ही जाते थे, हेड ऑफिस जाते थे, हाँ। वहाँ चाय रूम जाते थे। नए कपड़े वगैरह देते थे? जी। कपड़े कैसे पहनते थे, मतलब वो- नए कपड़े देते थे? जी, वहाँ से मिलते थे कपड़े, वो अच्छा। देते थे। वैसे ऐसे गुजर गए दिन। खाना शाना बनाना भी सिखाते थे? नहीं, खाना बनाना नहीं सिखाते थे, ऐसे ही बच्चों का बस काम करते थे। मारते तो नहीं थे? नहीं, इतना नहीं मारती नहीं थी, अच्छा, सही रहते थे वो। टॉर्चर नहीं करते थे? नहीं, पुरानी वाली टीचर भी नहीं करती थी? पुरानी वाली करती थी, इतना किस डांटती बात थी। पे? किस वो- बात पे? तो बच्चों को काम नहीं करते थे ना, बच्चों को नहीं देखते थे, खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए तो टॉर्चर करते थे। इतना बेटा 2.5 साल आपको अपने घर वालों की याद नहीं आई? आई थी। क्या इतना गुस्सा आ गया आपको कि आप इतनी देर उनसे दूर रही? आपको ऐसे नहीं लगता था आपके वालिद परेशान होंगे, आपकी फुफ्फो परेशान होंगी? लगता था, हैं? लगता था। कौन याद आता था ज्यादा? रहता तो घर वाले आते थे, अब्बू याद आते थे, अब्बू आते थे, बहन भाई याद आते थे, अच्छा, सब आते थे याद। वो जिस पे गुस्सा था, जिस जी। भाई पे, वो भी आता था याद? जी, सब आते थे याद। तो इतना क्या, मतलब उस वक्त जेन में ये ज्यादा गुस्सा आ गया था जी। उसकी बात पे, जी, तो फिर चली गई? जी, तो डर नहीं आता था कि ये मैं कहाँ पे आ गई हूँ? जी, डर लगता था, डर लगता था, डरती थी कहीं कहाँ। तो वो लोग ने भी पूछा भी था घर का मेरा, अच्छा, तो मैंने बताया भी था। इसलिए इन लोग के जो नहीं पूछा बेटा, 2.5 साल लगे ना, शुरू में किसी ने नहीं पूछा? नहीं, वो पूछती थी, पूछा नहीं था उसने, मैंने खुद बताया था। घर के एड्रेस भी लिखवाए थे, बताए थे, सब कुछ। लोग ढूंढते रहे, तो ढूंढा तो उन लोग किसी ने भी नहीं था।
पूछते थे बस एड्रेस, तो बताते नहीं थे। दूसरी मिस आई थी, उस लोग ने पूछा था घर का, वो लोग कह रहे थे गाड़ी लगे कि लोड के आपको भेजेंगे, भेजती नहीं थी। बोलती बच्चे नहीं भेजेंगे, बच्चे बाद में भेजेंगे, वो नहीं भेजती थी। ऐसे ही 1.5 साल गुजर गए। तो मैंने बाद में जब दोबारा बोला, वो कहते नहीं, घर वाले आएंगे, वालदा आएगी या बाप आएगा फिर लेकर जाएगा, ऐसे हम नहीं भेज रहे। औरतें ही होती थी आपके वो सेंटर में कि मर्द भी होते थे? नहीं, मर्द नहीं होते, औरतें होती थी बस। सिर्फ जी, गर्ल्स ही, अच्छा, मर्द कोई नहीं थे। मर्द नहीं, जो देखभाल भी करती थी जी, वो टीचर्स भी, वगैरह, वो भी सारी जी खवातीन थी? जी। ठीक है। कब दिल करता था? ईद त्योहार पे नहीं दिल करता था? दिल कि करता था, वालिद हो या घर वाले हो मेरे पास? जी दिल करता था। अच्छा, तो आप कहते नहीं थे उनको? बोलती थी तो बहुत बोला था, नहीं सुनते ये थे। आखिरी बार कैसे उन्हें फिर आप पे रहम आ गया कि उन्होंने आपके घर वालों से रब्ता कर दिया या पुलिस से रब्ता कर नहीं, दिया? वो लोग बोले थे अपने घर वाले आएंगे, तो मैंने बोला घर का नहीं, एड्रेस याद है मुझे, एड्रेस से भेज दें। उन लोगों ने बोला चलो आपके पुलिस वालों से जो आपके छोड़ के गए उन लोग से पूछ लेते हैं। उन लोग से सारे में लोग ने पूछा, मेरी पुलिस वालों से बात भी हुई थी। लोग ने पूछा था घर का, मैंने बताया, कहते आपको बता देंगे, घर मिलेगा तो आपको बता देंगे। दूसरे दिन उन लोगों को घर मिल गया। मेरे घर वाले की पिक्चर आई थी तो उन लोग ने दिखाई थी। मैंने बोला जी मेरे घर वाले, लोग ने बोला आ जाएंगे घर वाले लेने। आपको पिक्चर दिखाई? किसकी जी। पिक्चर दिखाई? मेरी फुफड़ की थी। किसकी? फुफड़ की थी फुफ्फड़ की? जी। फुफ्फा के शौहर की? जी, अच्छा, उसकी फुफ्फो थी के? जी। ठीक है, उनकी दिखाई पिक्चर जी। कि ये आपके घर वाले? आपने जी। कहा यही हैं? जी, फिर तो वो बोलते आ जाएंगे आपको लेने थोड़े दिनों बाद। मेरे वालदा आ गए थे मुझे लेने के लिए, इसलिए वालिद आ गए लेने जी। के लिए? मैं चली गई। तो कैसे 2.5 साल कैसे गुजर गए? गुजर गए, बस अच्छे बुरे गुजर गए। पता नहीं लगा? अच्छे गुजरे के? अच्छे भी गुजरे, बुरे भी गुजरे। अच्छे कौन कौन से लम्हात थे? बाहर घूमना, कभी खुशी में लेकर जाना कहीं, ऐसे वो अच्छा बाकी- लगता था? जी। अच्छा। बाकी नहीं। और बुरा कब फील होता था? जब डांटते थे, जब ऐसे जब मारते थे? जी तब- मारते भी थे? जी, वो पहली वाली मिस मारती थी ना, तब बुरा लगता था। थप्पड़ मारती थी? जी, वो क्या डंडा मारती थी? डंडा नहीं, थप्पड़ ही अच्छा। बस थोड़े ऐसे कर देती थी, डांटती वगैरह थी, तब इसलिए बुरा लगता था? जी गुजर गया ऐसी दिन। तो अगर यहीं पे रहती और कब आपको फील आई कि आपने जाना है? बस जब बुरा लगने लगा जी, कि याद आती थी घर वालों की? याद आती थी, बताती थी, इसलिए फिर जब मैंने ज़्यादा ही बुरा लगता था फिर मैंने बताया, लोग ने किया था घर का, इस तो कर भी नहीं रहते घर का। फिर बाबा कैसे मिले आपके वालिद आपको? वहाँ पे आए? लेने आए थे हाँ, तो आपने देखा उन्हें? जी। मिली फिर उनसे? जी मिली थी, गले लगी थी, खुशी हुई थी। खुशी भी थी? जी ठीक है, फिर बाबा ले आए आपको लाहौर? जी। उस भाई से मिली जिसके साथ लड़ी थी? जी मिली। वो क्या कहता? वो तो खुश हो गया था खुश हो गया था? जी, दोबारा मिल चुके इसे सॉरी नहीं किया उसने आपसे? की थी। क्या कहता है? बोलता सॉरी, अब नहीं, आइंदा नहीं करेंगे झगड़ा, आइंदा नहीं करूँगा झगड़ा? जी मिलजुल के रहेंगे। सही है। ऐसे तो इतना टाइम आपने गुजारा, वहाँ से क्या सीखा? कुछ भी नहीं, हम्म? स्कूल में गुजरा था, स्कूल में अच्छा कुछ कर लेते थे काम वगैरह आप पढ़ रही हो? नहीं, अभी यहाँ नहीं पढ़ रही, अच्छा, वहाँ पढ़ती थी थोड़ा। तो अब यहाँ पे भी पढ़ना चाहिए ना, आपके वालिद को भी कहते हैं आपको पढ़ाना चाहिए। जी वो पढ़ा देंगे, पढ़ाएंगे? डालेंगे जी। सही है। नाजरीन, ये वो बच्ची है जो आज से 2.5 साल कबल अपने भाई के साथ लड़ने की वजह से घर से गई थी और 2.5 साल तक इसने फिर वहाँ पर ईदी सेंटर में जो कराची हैदराबाद में है वहाँ पर ये उतरी, फिर वहाँ पर इसने 2.5 साल गुजारे और बिलाखिर 2.5 साल बाद ये अपनी फैमिली में वापस दोबारा आ चुकी है। इसी की ज़ुबानी सुनाया इसने क्या कुछ वहाँ पे देखा, क्या कुछ सहती रही, क्या उस पर बीता और किस तरह से वो यहाँ से गई थी, और मज़ीद इस हवाले से हक़ाइक़ हैं क्या, वो भी हम आज ही के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रायविंड से लाहौर रंग के नुमाइंदा खसूसी फ़हीम अकबर सिंधु,
और इनकी जुबानी जानते हैं कि ये एक बच्ची का आज से 2.5 साल कबल अगवा का मुकदमा जो थाना सिटी रायविंड में दर्ज हुआ, और अब 2.5 साल बाद वो बच्ची जब 12.5 साल की थी तब मुबैना तौर पर अगवा हुई और 15 साल की उम्र में वो बाजियाब हुई। पुलिस ने इसमें क्या किरदार अदा किया और ख़ास तौर पर उसकी बाजियाबी में भी अब पुलिस का कोई ख़ास किरदार है या नहीं, ये तमाम तफसीलात फ़हीम अकबर सिंधु की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आपने वक्त दिया। फ़हीम साहब, एक अजीबो गरीब सा वाक़या, वैसे तो अगवा के बहुत से वाक़यात होते हैं, 2.5 साल एक 12.5 साल की बच्ची जो 15 बरस की हो गई वो आई, उसके वालिद की हमने गुफ्तगू सुनी, बड़ा परेशान रहा, पुलिस के चक्कर काटता रहा, बार बार थानों में जाता था, फिर वापस आता था, और फिर उसे 6 माह बाद या 8 माह बाद पुलिस ने कहा कि तुम यहाँ पर लिख के दे दो कि तुम्हारी बेटी बाजियाब हो गई है, तो बाजियाब नहीं हुई भी थी। पुलिस का रवैया कि अब वो बाजियाब हो चुकी है, वो खुशी से बड़ा खुश है, उसमें खुशी की लहर दौड़ी। जाहिर सी बात है, एक बच्ची 12.5 साल की उम्र में अगवा हुई और 15 साल की उम्र में अब वो बाजियाब हुई है, तो पुलिस का इसमें क्या किरदार रहा इस सारे वाक़े में? सलमान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप हमेशा रायविंड के लोगों की आवाज़ बनने के लिए बेलौस यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो इस केस के हवाले से भाई मैं आपको बताऊं तो आज से 2.5 साल पहले जब ये बच्ची मुबैना तौर पर अगवा होती है और इसकी जो ये ख़बर हमें पता चलता है कि एक बच्ची है वो अगवा हो गई है और लापता है, घर से मिल नहीं रही, इस हवाले से ये लोग थाना सिटी रायविंड में जाते हैं। वहाँ पर इनकी FIR जो है वो दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उसके बाद अगला मरहला जो पुलिस का रवायती स्टाइल है उससे शुरू हो जाता है कि वहाँ पर मुझे आज भी बड़े अच्छे तरीके से याद है कि इन लोगों की सुनवाई नहीं होती। सही। ये लोग रायविंड टाउन कमेटी चौक को बंद करते हैं, वहाँ पर टायर जलाते हैं, पूरी फैमिली रोड के ऊपर आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस इनके साथ तावन नहीं करती। सही। उनके खिलाफ ये लोग सरापा एहतजाज होते हैं और बच्ची की बाजियाबी के लिए वहाँ पर मुतालबा रखते हैं कि हमारी बच्ची को बाजियाब करवाया जाए। वहाँ से पुलिस अपने रवायती अंदाज में इनको मुतमिन करके थाने में ले जाती है। इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर जो है वो उस वक्त इंचार्ज साहब थे, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। उन्होंने इन्हें यकीन दहानी करवाई, जी आपकी बच्ची हम जो है वो जल्द अज जल्द उसको बाजियाब करवा लेंगे, उसको तलाश कर लेंगे। उसके बाद इन लोगों को बताया जाता है कि जी आपने इनके ऊपर ही, जैसा कि इस बच्ची के वालिद ने आपको बताया कि इसके ऊपर ही इल्ज़ामात पुलिस की जानिब से लगाए गए कि आपने अपनी बच्ची को जो है वो खुद ही मार दिया है या कहीं पर आगे पीछे कर दिया है, तो आप कोई ज़ाती मकसद हासिल करना चाहते हो या बच्ची को आपने किसी ऐसी गलत वजह की बिना पर जो है वो आपने उसे मार दिया है और ये सारा ड्रामा कर रहे हो। ये बदकिस्मती है हमारे निज़ाम की जो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पर एक इस चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा कि अगर ये निज़ाम इतना ही अच्छा होता, ये जो हमारी पुलिस है ये बर वक्त कार्रवाइयाँ अमल में लाती, तो आज वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा को CCD को मैदान में ना उतारना पड़ता। जो इन लोगों का मचाया हुआ गंद है वो CCD साफ़ कर रही है। तो इन लोगों की गफलत रही है हमेशा से। इन लोगों ने जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग ने जो चीज़ों को फौरी तौर पे जो कवर करने की कोशिश नहीं की। लोगों की डकैतियाँ हो जाती हैं, उनको माल मुकदमा नहीं मिलता, उनके जो है वो माल मसरूका जो होता है वो बरामद नहीं होता, किसी किस्म का काम जो है वो ये लोग नहीं करते। अब इससे ऊपर बदकिस्मती क्या होगी कि ये बच्ची जिस तरह इस बच्ची के लवाहकीन ने अपनी ज़ुबानी आपको बताया है कि ये बच्ची किस तरह बाजियाब हुई है। ये बच्ची ईदी सेंटर की तरफ से इनको कॉल आती है पुलिस को और पुलिस इनको सिर्फ इतला देने में अब कल से लेके परसों से लेके यानी कि जिस दिन से ये बच्ची की खबर इनको मिली है उस दिन से आज तक इस तरह हीरो बन रही है कि जैसे पता नहीं इन्होंने कोई उसामा बिन लादेन ढूंढ लिया है। एक 11 साल की मासूम बच्ची जिसे तलाश करने में ये निज़ाम बिल्कुल फारिग हो चुका है। एक बाप उसको उसकी 11 साला बच्ची मिलवाने में, तलाश करके देने में ये नाकाम लोग इसका क्रेडिट इस तरह ले रहे हैं कि जैसे इन्होंने बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया, कश्मीर फतह कर लिया है इन्वेस्टिगेशन रायविंड ने। सही है। तो हालांकि दूसरी जानब तस्वीर का दूसरा रुख इनके लवाहकीन ने आपको बता दिया है। तो मेरी
बहसीत शहरी और बहसीत एक प्रेस क्लब के चेयरमैन, क्योंकि हमारे पास ये लोग आते हैं, ये लोग साइल हैं, ये अपने मसाइल लेके पुलिस से जो मुतासर होके और दीगर इदारों से मुतासर होके हमारे पास दाद रसी के लिए आते हैं। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम जो मौजूदा वक़्त के हुक्मरान हैं उनसे गुजारिश करें कि निज़ाम को बेहतर करें। नए इदारे बनाने से 4 दिन मतलब 2-4 माह तो ये CCD काम करेगी, लेकिन क्या गारंटी है कि ये लोग भी कल को यही इनका भी रवैया हो जाएगा जिस तरह पहले पंजाब पुलिस का रवैया मौजूद है। तो इन्वेस्टिगेशन सेल से ये कहना चाहूँगा कि कारकर्दगी करके दिखा के उसका आप क्रेडिट लें, ज़रूर लें, लेकिन इस तरह खाम खा की हीरोगिरी मत करें। सही है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि उसका वालिद एक बात जो बता रहा था कि पुलिस कहती है उन्होंने ये बच्ची बाजियाब करवा ली, अगवा हुई, फिर वो ईदी सेंटर में थी, पुलिस को इतला दी गई, फिर पुलिस उसके वालिद को साथ लेके गई। जितने फंड मिलते हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस को मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए, दूसरे शहरों में जाने के लिए, क्या उन्हें इस्तेमाल किया जाता है या ये गरीब ड्राइवर के खर्चे पर पुलिस कराची से वो बच्ची लेके आई है? ये ज़रा बताएं। सलमान भाई, आपको उसने अपनी ज़ुबानी बताया कि 60 से 70 हज़ार रुपया एक ड्राइवर का, जो ड्राइवर की नौकरी करने वाला शख्स है, मजदूरी करने वाला, सारा दिन मौत की सवारी के ऊपर सवार होकर वो बंदा पैसे इकट्ठे करता है और अपने जो 5 बच्चे हैं उनका पेट पालता है। वो बंदा अपनी 11 साला बच्ची, जो अब उसकी उम्र 14 साल हो गई है, उसको बाजियाब 2.5 साल बाद करवाने के लिए 70,000 रुपया जेब से खर्च कर रहा है। तो ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। तो ये जो फ़ंड इन लोगों को मिलते हैं, इसमें भी जो अरबाब इख्तियार हैं इनकी मॉनिटरिंग करें, इनको चेक करें कि जो फ़ंड जो इनको हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं, जो इनके जो भी वेज़ हैं जहाँ से इन्हें ये फ़ंड दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए ये अपना काम करते हैं, वो फ़ंड कहाँ जाते हैं। उस हवाले से इनके जो बाला अफसरान हैं वो इसके ऊपर नोटिस लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए मुद्दई मुकदमा कोई इनकी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है? वही पुराना वाला ही चल रहा है सारा मामला? सलमान भाई, आप प्रोग्राम तफ्तीशी करते हैं, माशाल्लाह सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और हमारी सोच से ज़्यादा आपका तजुर्बा है, तो आपको बखूबी इल्म है कि ये जो लोग हैं ये रवायती तरीक़ाकार अपनाए हुआ है। किसी मुद्दई ने अगर रेड करवानी है तो वो पुलिस को जब तक पेट्रोल नहीं डलवा के देगा तो मुश्किल हो जाता है। तो गरीब गुरबा लोगों को इसीलिए इंसाफ नहीं मिलता, तो इसीलिए डलवाने के पैसे नहीं, इसीलिए तो 2.5 साल इससे यही कहा जाता रहा है कि आप जो है वो हमें लिख के दे दो कि बच्ची मिल गई है, और उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई इकदाम, उसके लिए कोई इकदाम नहीं किए, सिर्फ थाने बुलाते थे, सिर्फ उसे बुलवाते थे। आपने उसकी जुबानी सुनी है, उसने इतना बड़ा इंकशाफ किया है जिससे मैं ये कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे झूठा क्रेडिट लेने वाले लोगों को कि जो किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ये लोग ये अपने अफसरान वाला की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। क्या उनको नहीं पता ये सारा मामला किस तरह हुआ है कि हमारा सिस्टम तो इस हद तक क्रैश हो गया है कि ये बच्ची किसी गैर मुल्क में नहीं गई थी, ये पाकिस्तान के अंदर ही थी और इदारों में ये सूबा तब्दील हुआ है, लेकिन इदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो दारुल अमान है उनके अंदर भी इस तरह के मामला होने चाहिए कि 2.5 साल उन्होंने रखा, उन्होंने कोशिश ही नहीं की कि इस बच्ची के वर्षा तक पहुंचा जाए। ये भी लम्हा फिक्रिया है, क्यों उन्होंने कोशिश नहीं की? ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि जो इदारे हैं इस तरह के दारुल अमान हैं वो लावारिस बच्चों को, जो आने वाले बच्चे हैं, उनको फौरी तौर पे उनका जो है वो मुतलका थानों में एक सर्कुलेशन करें, उसकी तस्वीर और उसके जो उसके ज़रिए जो पता चले डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जो भी वो अपना एड्रेस वगैरह बताए, कम अज़ कम उसकी तस्वीर, क्योंकि जिसका कोई भी घर का फ़र्द लापता होता है, बच्चा बिलखुसूस, वो थाने में रिपोर्ट करता है और थाने वाले फौरी तौर पर उसकी तस्वीर मांगते हैं। तो हर थाने में गुमशुदा शख्स का रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो ये जो दारुल अमान वाले हैं इनको भी चाहिए कि फौरी तौर पे जो है वो पुलिस के साथ रब्ता करें और पुलिस को चाहिए कि उसकी फौरी तौर पे कोऑर्डिनेशन करें। ये छोटे बच्चों के हवाले से ख़ास तौर पर ऐसे इक़दाम अमल में जो लाने चाहिए। नाज़रीन, बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी तो वालिदैन पर आयद होती है। अगर इन दोनों में से एक भी कम हो तो जिसके पास वो बच्चे हैं, चाहे वो वालिद है या वालिदा,
उसकी जिम्मेदारी में बहुत इजाफा हो जाता है। जिस तरह से आपने इस केस में देखा कि एक बच्ची अपने भाई से झगड़ने के बाद दिल बर्दाश्ता हुई और 2.5 साल बाद उसकी बाजियाबी मुमकिन हो सकी। लिहाजा अपने बच्चों के साथ नरमी के साथ पेश आएं और उनकी हिफाजत को हर तरह से मुमकिन बनाएं और उन्हें अच्छे बुरी की तमीज़ भी सिखाएं और उन्हें ये बताएं कि उन्होंने अपने बहन भाइयों की बातों को किस तरह से बर्दाश्त करना है। कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्ची की तरह और भी बच्चे जो हैं वो इसी तरह अपने वालिदैन से अलग हो जाएं और अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे फिर वालिदैन को मिलते भी नहीं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और अपने बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।